Welcome to all in Gate Plus. Today our topic is integral and its application. First we are talking about here indefinite integral, that is t square cos t dt. We have to find here integration here. Then we can apply here Euler method, or we can just apply another method. We can say here, suppose we have a two function, one is that is what t square, second one is the cos t, and we have to check which function is goes to zero when we are applying the differentiation. मीन्स कौन सा इसमें फंक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे. आई थिंक दिस वन इज मीन्स वी हैव टू राइट फर्स्ट ईयर टी स्क्वायर, अगेन दिस वन इज व्हाट cos t. First we have to differentiate and second we have to integrate here. Okay, that is also called one method as integration by part. Okay, but here we apply another method. I just give you idea how to click answer in within a 1 minute or 2 minutes. Just write here 2 square t square and again differentiate here, that is 2t, again differentiate, that is 2, again differentiate, that is goes to 0, because when we are differentiate any constant that is goes to 0. Again if I integrate here cos t, integration of cos t, that is sin t. Okay, integration is nothing but just shift the what signal by minus 90 degree. Okay, that is sin t. Again if I integrate here sin t, that is minus of cos t. Again if I integrate minus cos t, that is minus of sin t here. Okay, next we have to do the what we have to do, first we have to write here plus in differentiation, plus minus, again plus minus. Okay, and just multiply cross here. yeah, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो सारे आगे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे. तो मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन इसका लिखने जा रहा हूं, क्या टी स्क्वायर दैट इज साइन टी, अगेन दिस वन इज माइनस माइनस, अगेन प्लस 2t cos t, अगेन माइनस 2 साइन t. दिस वन इज द इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर cos t. और आपके जो मेथड पता होगा उसको सॉल्व करके देख लेना, आंसर यही आएगा. ठीक है, clear? Suppose this one is what t to power cube and we have e to power minus t dt. Then how we can indicate here? First we have to check which one is the terminate to 0 when we are using the differentiation. I think this one means if I differentiate first time, this one is what 3t square, again this one is 6t, again 6, again this goes to 0. This one is due to differentiation and integration. After integration of e to power minus t, we are getting here minus of e to power minus t, again e to power minus t, again we are getting e to power minus of e to power minus t, again minus t. Clear? Again we have to second step, what we have to do, plus minus plus minus. Okay, cross multiply here, what we can write, t cube minus of e to power minus t, again minus 3t square e to power minus t. Okay, cross multiply, what minus 6t e to power minus t, minus 6 e to power minus t. Suppose if the any value is, if it is definite integral, that is a to b, then we have to put here again what a to b here. Okay, this is way to find the if any function is terminating to 0 when we are applying the differentiation here. Okay, suppose if I take another question here, that is what t cube e to power 2t. First we can write here what, as usual, t to power cube, that is 3t square, again this one is 6t, again 6 goes to 0. Okay, next what we have to do here, this one is what e to power 2t, this one is e to power 2t upon 2, again e to power 2t upon 4, again e to power 2t upon 8, again e to power 2t upon 16 here. Okay, next step we have to write here plus minus here, cross multiply, that is we get here t to power cube and e to power 2t upon 2, next minus 3t square e to power 2t upon 4, again plus 6t e to power 2t upon 8, again minus 6 e to power 2t upon 16. This is way to find the integration of
what t to power cube e to power 2t ut. Okay, if it is definite integral means suppose a to b here, then we have to put here what a and b. Okay, I think this one is clear here. तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आएंगे तो हम ऐसे ही प्रोसीड करेंगे. ठीक है, वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट करके भी देख लेना. उसमें एक कितने लाइन में हो गया, 3 लाइन में हो गया, बट उसमें ज्यादा लाइन लगेंगे और उसमें मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे प्लस माइनस के. ठीक है, 1 को इंटीग्रेशन करेंगे, फिर सेकेंड को डिफरेंशिएशन, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे. ऐसे कई प्रोसेस होते हैं. इसमें क्या होता है, लेंथी प्रोसेस नहीं है, सबसे बेस्ट मेथड हो सकता है. ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा सा देखते हैं और कुछ चीजें. सपोज इस इंटीग्रेशन की बात कर रहा है 0 to π/2. ठीक है, इंटीग्रेशन की कोई लिमिट नहीं है. ठीक है, बहुत सारे रूल है, बट हम क्या करेंगे, बीच बीच में हम इंटीग्रेशन के रूल लाते रहेंगे. ठीक है, जितना बेस्ट मेथड हो सकता है हम अप्लाई करेंगे उस पर. ठीक है, तो अभी हम इंटीग्रेशन की बात करें यहाँ पे 0 to π/2 sin t cos t. सपोज if I draw the graph of sin t. Okay, this is the graph of sin t, and what is the graph of cos t? This one is what, 0. This one is what, π/2. Again this one is pi, and next one is what, this one is 2 pi. This one is 3 π/2. Okay, next, what about cos t? This one is cos t is, suppose cos x, we can write this is x here. Then what about cos x? Cos x at π/2 is 0 and 0 is 1. Maybe this is something. Okay, then what we have to write here, we have to integrate only 0 to π/2. 0 to π/2 here, then we are interested this area only, that is π/2 here. Okay, when we talking about 0 to π/2, then we have to break here 2 parts. What about this point? This one is what, π/4 here. Suppose if I break 0 to π/4, then साइन एंड कॉस विच वन इज द मिनिमम ईयर. जब हम 0 to π/4 की ब्रेक किया मैंने 0 to π/4 में, दोनों में से कौन सा मिनिमम है, साइन और कॉस में से हम देख रहे हैं. तो ये वाला पार्ट क्या है, मिनिमम है. इसमें कॉस की वैल्यू 0 to π/4 में कॉस की वैल्यू ग्रेटर होगी हमेशा साइन से. तो क्या लेंगे, इसमें मिनिमम कौन सा होगा, साइन एक्स dx. ओके, नेक्स्ट, फ्रॉम π/4 to π/2, बिकॉज मैक्सिमम लिमिट इज π/2. फ्रॉम π/4 to π/2 विच वन इज द मिनिमम. देखो यहां से π/4 to π/2 में देखेंगे तो कौन सा मिनिमम है यहाँ पे, ये वाला पार्ट, दैट इज कॉस. मीन्स वी कैन राइट हियर cos x dx हियर. ओके, इफ आई इंटीग्रेट हियर, देन दैट इज cos x 0 to π/4. अगेन इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज sin x, दैट इज π/4 to π/2 हियर. ओके, if I put the value of π/4 here, then this one is what, 1 minus 1/√2 प्लस. ठीक है, यहां पे मैंने क्या पुट किया, π/2 पुट किया तो 1 हो गया, π/4 पुट किया तो क्या हो गया, 1/√2 हो गया. मीन्स व्हाट वी कैन राइट हियर, दैट इज 2 minus 2/√2 इज द करेक्ट आंसर. क्लियर. नेक्स्ट, suppose we have a function even here, means if fx is even, fx, what is the condition for even? If any function x is replaced by minus x, again we are getting the same function fx, means fx is the even function, and even function is symmetrical about its y-axis. And what about odd function? If any function x is replaced by minus x, we are getting here minus of fx, this one is called as odd function. Okay, and if it is odd function, then when we are integrating from minus a to a, this one is always be 0. okay, देखो कि एग्जाम में आते हैं जो क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहेंगे, लॉग साइन कुछ भी दे देंगे और लास्ट में देखेंगे तो क्या रहेगा, ऑड फंक्शन रहेगा, उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 0. जब भी ऑप्शन में 0 रहेगा तो एक बार ये प्रॉपर्टी जरूर चेक करेंगे कि ऑड है कि नहीं. ठीक है, मीन्स फर्स्ट व्हाट अबाउट mod x. mod x, if I suppose break to mod x, this one is x when x is greater than 0. when x is less than 0, इस वैल्यू इज minus x. देन यहां पे देखेंगे इसका ग्राफ कैसा होता है. दिस वन इज द ग्राफ ऑफ mod x, बिकॉज x पॉजिटिव, दिस वन इज द x, y इक्वल्स टू x. when x is negative, this one is minus x, y equals to minus x here. okay,
if I break here minus 1 to 1, then mod x is replaced by minus x dx, or 1 to 0 to 1 mod x is replaced by what, x dx. ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 minus 1 to 0. Again this one is x square by 2 0 to 1. Okay, put here 0, this one is 0. Again we are putting here minus 1 by 2 here. Clear, minus 1 by 2 प्लस हो जाएगा यहाँ पे, फिर मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा माइनस, नेक्स्ट 1 by 2 here. Okay, this one is already minus x square 0. If I put here 0, yeah, this one is again minus here, na. If I put here 0 0, again we are writing here minus again this one is plus here, means we can say 1 by 2 here. Okay, suppose this is what, even function. If it is even function, then how we can write directly here, if it is even function we can write here 0 to 1 what, fx, that is mod x dx. Okay, and 0 to 1, what is the value of mod x, this one is x, then we can write here 0 to 1 x dx. And if I integrate here what, x square by 2 0 to 1, that is 2 into 1 by 2 equals to what, 1. This is way to find the what, integration of minus 1 to 1 mod x dx. Okay, suppose ऐसा दिया रहा था क्या, minus 2 to 2 x minus 1 mod dx, तो ऐसे ब्रेक कर देंगे कहाँ पे, x equals to 1 पे ब्रेक करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन गिवन है, x to power 20 minus pi by 2 to pi by 2. This one is log of 1 plus sin x 1 minus sin x here. Okay, first we have to check this function is even function or odd function. If I put x equals to minus x here, then this one is even already, this one is again x to power 20 here, and if I put this one is log 1 plus sin of minus theta, that is equals to again minus of sin x and 1 plus sin x here. Okay, and we can also write here x to power 20 log of what, 1 plus sin x upon 1 minus sin x to power minus 1. Okay, if I take minus outside here, then minus of x to power 20 log of 1 plus sin x upon what, 1 minus sin x here. What about this, here x is replaced by minus x, again we are getting the minus of fx, means this is odd function. And if any odd function is integrate from minus a to a, this one is always be 0 here. Okay, I think this one is clear about. Next question, ऐसा क्वेश्चन देखा होगा गेट में बहुत बार पूछे गए, मीन्स 0 to pi by 2 sin to power n x 0 to pi by 2 cos to power n x dx. ठीक है, सपोज मैं बात करूं यहाँ पे, तो ऐसे जब भी n टू, यहाँ 0 टू लिमिट हमेशा पाई बाई 2 होनी चाहिए, ध्यान रखना, 0 टू पाई बाई 2 कॉस टू पावर n x dx. इसकी वैल्यू कैसे लिखते हैं, n माइनस 1 n माइनस 3 n माइनस 5, यहाँ पे n माइनस 2 n माइनस 4, माइनस 2 में सब्ट्रैक्ट करते जाते हैं, और लास्ट में 1 बाई 2 आता, तो यहाँ पे पाई बाई 2. वेन n इवन होगा तो एक पाई बाई 2 का टर्म आएगा, n ऑड होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 का टर्म आएगा. ठीक है, ये हमें माइंड में नहीं रखना, बस सिंपली ऐसे कैलकुलेट करते जाएंगे. जैसे मैं सिंपली बोल दूं, यहाँ पे मैं क्या ले लूँ, लिमिट 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर व्हाट dx. ठीक है, साइन स्क्वायर dx की बात करेंगे तो इसको ब्रेक करेंगे किसमें, व्हाट, cos 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, this one is x. Then we can write here what, 2 sin square x equals to 1 minus cos 2x. Okay, and this one is equal to 1 by 2. Then what we can write, 0 to pi by 2 and 1 by 2 and 1 by 2 cos of 2x, and this one is dx. Okay, again this one is what, if I integrate here, this one 1 by 2 is common here, we can write here pi by 2, again 1 by 2 common here. This one is, if I integration of cos 2t, this one is what, sine of 2x upon 2, and again if I put 0 to pi by 2, this one is cos pi by 2, if I put pi by 2, this one is cos pi, and cos pi is 0. Okay, sine 0 is 0, means we can write here what, that is 1 by 2, that is 1 by 4 here. Okay, let us check by this method. Okay, n equals to 2 here,
then how we can write here, that is 2. Okay, next n minus 1, यहाँ पे क्या n minus 1 आया, that is 1. ठीक है, 1/2 जैसे ही है यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, π/2, क्या हो जाएगा आंसर, π/4. तो ये मेथड सबसे बेस्ट मेथड है. तो ऐसे में क्यूब भी आ जाएगा यहाँ पे. तो बार बार ये फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे हम, डायरेक्ट कैसे क्लिक करेंगे यही मेथड मैं बताने जा रहा हूँ. सपोज यहाँ पे 8 आ गया तो इतना फार्मूला कहाँ मुझे माइंड में है, बट यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या दिया, -π/2 to π/2 sin 8 to power x dx. बट यहाँ पे लिमिट क्या होनी चाहिए, 0 to π/2. बस दिस वन इज द इवन फंक्शन. अगेन अप्लाई व्हाट, 0 to a fx dx here. Then what we can write here, 0 to π/2 and 2 sin to power 8x dx here. ठीक है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 what 8, that is 8 here, and next one is 7. 2 माइनस करेंगे यहाँ पे 5, अगेन 2 माइनस किया 3, 2 माइनस किया 1 हो गया, यहाँ पे 2 माइनस किया 6, 4 what 2, 1/2 आ गया तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे π/2. जैसे ही यहाँ पे 1/2 आएगा π/2 डायरेक्ट लिख देंगे, या डायरेक्ट ए माइंड में रखो कि इवन है तो π/2 आएगा यहाँ पे. ठीक है, 2/3 आएगा तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1 मल्टीप्लाई करेंगे. जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, अभी 7 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6, 2 माइनस करेंगे 4 what 2, अगेन यहाँ पे 7, 5, अगेन 3, 2/3 आ चुका है तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई कर देंगे 1. ओके, दिस इज वे टू फाइंड द आंसर हियर. नेक्स्ट देखते हैं, what, suppose this is given in form of 0 to π/2 sin to power n cos to power m x dx. Okay, then how we can write here, this one is again okay, if k का मल्टीप्लाई, यहाँ पे जो k की वैल्यू क्या होगी, if m and n both are even, यहाँ पे दोनों इवन होंगे तभी यहाँ पे π/2 का मल्टीप्लाई होगा, अदरवाइज एक इवन होगा एक ऑड होगा, या दोनों ऑड होंगे तो हमेशा किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का. तो यहाँ पे दोनों इवन है तो ऑब्वियस सी बात है किसका मल्टीप्लाई होगा, π/2. मैंने पहले लिख लिया यहाँ पे. ठीक है, दोनों को ऐड किया मैंने तो यहाँ पे क्या हो गया 14. ठीक है, यहाँ पे देखते हैं एक एक को यहाँ पे माइनस करके लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 - 1, दैट इज व्हाट 5, अगेन 2 माइनस किया 3, अगेन 2 माइनस किया 1. इसकी बात करेंगे, इसमें एक माइनस करेंगे 7. ठीक है, 1 माइनस 7, अगेन माइनस किया 5, 3, 1 हो गया. यहाँ पे माइनस करते जाएंगे 12 व्हाट 10, अगेन 8, 6, 4 व्हाट 2. ओके, एंड बोथ आर इवन, देन डायरेक्टली मल्टीप्लाई हियर π/2 हियर. दिस इज वे टू फाइंड द आंसर हियर. ठीक है, सबको वैसे ही वही मेथड है, बट यहाँ पे दोनों ऐड हो जाएंगे डिनोमिनेटर में. नेक्स्ट गामा फंक्शन, दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. अब गामा फंक्शन की बात होती थी, यहाँ पे कुछ देखते हैं हम पॉइंट, क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं. ठीक है, गामा फंक्शन लिमिट इज गोज फ्रॉम 0 to infinite e to power -t and t to power n-1 dt, that is equal to gamma n here. Okay, gamma n plus 1 equals to n, gamma n, or we can say here n factorial here. Suppose if I write here gamma 5, what we can write here, gamma 4 plus 1, this one is also write as 4 factorial, or we can say here 4 gamma 4 here. Okay, what about this gamma of 1/2, this one is under root pi. इसको माइंड में हमेशा रखना, बिकॉज इस पे क्वेश्चन हमेशा को रिलेट करते हैं, इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं. ठीक है, सपोज कभी लिखा हुआ है ऐसे 7/2 लिखा हुआ है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1 + 5/2 लिख सकते हैं. अगेन इसको क्या लिख सकते हैं, 5/2 गामा 5/2. ठीक है, तो ऐसे. ओके, सपोज क्वेश्चन इज गिवन हियर, देन हाउ वी कैन सॉल्व, we can apply here again gamma function. Okay, then how we can write here, if it is even function, but what is the formula for gamma function, that is 0 to infinite what e to power t and t to power n-1 what dt, that is equals to gamma n here. Okay, but limit is goes from 0 to infinite, but here limit is -infinite to infinite. We can convert here from 0 to infinite because this one is the even function, and we can write here 2 upon under root of 2 pi, that is what 0 to infinite e to power x square by 2 dx here. Okay,
Okay. Again we have to write here x square by 2 equals to what? T. Again x square equals to what? 2t. And x equals to we can write here under root of 2t. Suppose if I differentiate here, that is 2x dx equals to what? 2 dt. This one is cancel here. Dx equals to what? X to power minus 1 dt. Clear? If I put the value of x here, then what we can get? That is what? 2t to power minus 1. Okay? 2t power what? Minus 1. Again dt. X equals to under root of 2t to power minus 1 and dt here. Then again we can write here 1 upon under root 2 t to power minus 1 by 2 dt here. Okay. Suppose if I put here, then we can write under root 2 pi. Okay. 0 to infinite e to power minus t. And again if I replace dx, that is equals to 1 by root 2 multiply here. And what? T to power what? 1 by 2 minus 1, that is dt. This one is what? Minus 1 by 2 can write as 1 by 2 minus 1. Again we can write here under root of 2 pi. And what about this? If I correlate with the formula, that is n, value of n is what? 1 by 2, we can write here gamma of 1 by 2. And what is the value of gamma 1? Gamma 1 by 2, that is under root of pi, and divide by under root pi, that is equals to what? 1. That is equals to 1 here. Okay. This is way to find the or apply the gamma function here. Okay. Suppose if I use here another method. Suppose if I want to use here another method. Suppose question is given here. What? 1 by under root of 2 pi minus infinite to infinite. What? E to power x square by 2 dx. Clear? फर्स्ट अगर स्टैटिक्स में हम देखेंगे, हमने स्टैटिक क्लास हो चुकी है, उसमें मैंने सब कुछ बताया हुआ कि कैसे मेथड अप्लाई करते हैं. तो वहां पे हमने एक पढ़ा था क्या उसका कर पीडीएफ. पीडीएफ मीन्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पीडीएफ? दैट इज माइनस इन्फिनाइट टू इन्फिनाइट एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू व्हाट? 1. ये पीडीएफ की प्रॉपर्टी है. किसकी प्रॉपर्टी? पीडीएफ की. ठीक है. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की बात करेंगे. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एफ एक्स इक्वल्स टू क्या होता है? एफ एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 पाई सिग्मा स्क्वायर ई टू पावर एक्स माइनस म्यू एक्स होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर होता है. ठीक है. इसको इंटीग्रेट करेंगे माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट, दैट इज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ व्हाट? 2 पाई सिग्मा स्क्वायर ई टू पावर एक्स माइनस म्यू एक्स होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर डी एक्स. ठीक है. हमेशा इसकी वैल्यू 1 आएगी. स्टैंडर्ड वैल्यू इसकी हमेशा वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी, बिकॉज दिस इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. ओके. ठीक है. अगर इसका आइडिया नहीं है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, तो स्टैटिक्स वाले लेक्चर आप देख सकते हो, उसमें मैंने कई क्वेश्चन इस पे बात किया है. ठीक है. तो मैंने यहाँ पे क्या बोला? 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई सिग्मा स्क्वायर. एंड व्हाट इज सिग्मा स्क्वायर हियर? सिग्मा स्क्वायर इज व्हाट? सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू, दैट इज वेरियंस. And what about mu x? This one is the mean here. Okay. Then if it is in this form, standard form, then directly write here 1. What about this? If I correlate with this one, minus infinite to infinite e to power x minus 0 whole square upon 2, that is dx. और यहाँ पे क्या आ चुका है? अंडर रूट ऑफ 2 पाई. यहाँ पे क्या बात करेंगे? सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 1 है, तो यहाँ पे भी 1 है. ठीक है. तो ये पूरे स्टैंडर्ड इक्वेशन को फॉलो कर रहा है. यहाँ पे मीन की वैल्यू क्या है? 0 है. ठीक है. वेरिएंस की वैल्यू क्या है? 1 है. ठीक है. तो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड इक्वेशन को फॉलो करेगा, तो इसका पीडीएफ हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा. और इसका अगर कर्व मैं ड्रा करूं तो कैसा बनेगा? मीन कहाँ पे आएगा? 0 पे आएगा. ठीक है. इसका मैं इसका ड्रा करूं जो फॉर्मूला था, तो इसका क्या आएगा? ऐसे ही रहेगा, बट यहाँ पे मीन म्यू एक्स रहेगा, जो यहाँ पे म्यू एक्स गिवन है. ठीक है. तो ऐसा अगर सपोज यहाँ पे ऐसा नहीं देता, क्वेश्चन में क्या देता? माइनस इन्फिनाइट टू इन्फिनाइट ई टू पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स. तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे बनाएंगे. सपोज इससे सॉल्व करना है तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से, तो सबसे पहले इसको बनाना पड़ेगा. तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई,
और मल्टीप्लाई भी किससे करेंगे, अंडर रूट ऑफ 2 पाई। इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2 पाई, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो हम ऐसे ही करेंगे। सपोज यहाँ पे एग्जाम में क्या दे देगा, 0 to इन्फिनिट देगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट था तो इसकी वैल्यू 1 थी, बट 0 to इन्फिनिट लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज हमेशा माइंड में रखना रहेगा। जब भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा तो मीन से लेंगे, माइनस इन्फिनिट से लेंगे तो 1 होगा, बट मीन यहाँ पे ले लेंगे म्यू एक्स, जो यहाँ पे एक्स माइनस दिया रहेगा, मीन से लेंगे तो हमेशा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ होगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, एक और मेथड में देखता हूं। यहां पे हमें क्या पता है, हमें इंटीग्रेट करना माइनस इन्फिनिट टू इन्फिनिट ई टू पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। ठीक है, दैट इज व्हाट, अंडर रूट ऑफ 2 पाई हियर। ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला। हम थोड़ा सा अगर इलेक्ट्रिकल इसी एन के हो गए तो आइडिया होगा थोड़ा। फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी सिग्नल एक्स टी दैट इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिट टू इन्फिनिट एक्स टी ई टू पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी है। ठीक है, ठीक है, और कोई ब्रांच है तो मैं अभी बताऊंगा, इसका आइडिया होना चाहिए। दिस वन इज इक्वल टू व्हाट, एक्स ओमेगा। Okay, suppose if I put omega equals to 0 here, then what we can write, minus infinite to infinite xt. This one is 0, means we can write here dt. Okay, means what we conclude here, if suppose माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट किसी सिग्नल को इंटीग्रेट करना हो, मीन्स इसका सिंपली मीनिंग होता है एरिया ऑफ सिग्नल एक्स टी, या माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट किसी सिग्नल को इंटीग्रेट करना हो तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म सिंपली का आइडिया हो तो उसमें क्या पुट कर दें, ओमेगा इक्वल्स टू 0, वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, मीन्स किसी सिग्नल को इंटीग्रेट करना माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट में, उस सिग्नल का अगर हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म का आइडिया हो तो इसमें क्या पुट कर दें, ओमेगा इक्वल्स टू 0, वही आंसर हो जाएगा सिंपली। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन हम अभी देखेंगे, माइनस इन्फिनिट टू इन्फिनिट साइन टी अपॉन टी डी टी। ऐसे इंटीग्रेट करने लगेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा इसमें, तो इसका हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म का आइडिया तो डायरेक्ट पुट कर देंगे ओमेगा इक्वल्स टू 0, दिस वन इज द आंसर। ठीक है, तो इसका हम बताएंगे, अभी इस पर बात करेंगे, बट यहाँ पे अभी देखते हैं हम क्या बात कर रहे हैं। हमें एक्स टी का क्या फाइंड आउट करना, फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे हम, सपोज ये सेम उसी को कोरिलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब इसको भूल जाते हैं हम, माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट, सपोज इफ आई राइट हियर व्हाट, माइनस इन्फिनिट टू इन्फिनिट, एंड दिस वन इज व्हाट, माइनस इन्फिनिट टू इन्फिनिट, दिस वन इज अंडर रूट 2 पाई एंड ई टू पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स। ठीक है, अभी इसकी बात करें, इसका हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म आइडिया हो, उसमें क्या पुट कर दें, ओमेगा इक्वल्स टू व्हाट, 0। तो हम एक मेथड बता दे रहा हूँ, हमेशा जो ई टू पावर ए टी स्क्वायर टाइप का होगा, ए ग्रेटर देन 0 होगा, तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हमेशा आता है अंडर रूट पाई बाई ए ई टू पावर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 4a। ठीक है, बट अगर अगर मैकेनिकल सिविल ब्रांच हो और कोई ब्रांच और हो तो उसके लिए सिंपली बस यही माइंड में रखना, अंडर रूट ऑफ पाई बाई ए, क्योंकि इसमें ओमेगा इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे हमेशा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ए के हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ध्यान रखना। फोरियर ट्रांसफॉर्म हमेशा किसके लिए एग्जिस्ट करता है, स्टेबल के लिए, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, स्टेबल अनस्टेबल दोनों के लिए एग्जिस्ट करता है। बट लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका एग्जिस्ट नहीं करता है, सिग्नल विच आरओसी इज डज नॉट एग्जिस्ट, जिसकी आरओसी एग्जिस्ट नहीं करेगी उसी का केवल लाप्लास एग्जिस्ट नहीं करेगा, बट लाप्लास स्टेबल अनस्टेबल किसी के लिए भी एग्जिस्ट कर सकता है। बट फोरियर ट्रांसफॉर्म हमेशा जो स्टेबल के लिए एग्जिस्ट करता है, या सिंपली बोले फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑलवेज बी कैलकुलेटेड फॉर एनर्जी सिग्नल ईयर। ओके, ठीक है, अगर मैंने बोला मैकेनिकल सिविल है तो केवल इतना माइंड में रखो, और इलेक्ट्रिकल इसी और सभी ब्रांच है तो इसको माइंड में रखना चाहिए, बिकॉज इस पे क्वेश्चन आते हैं सिग्नल में। ठीक है, तो हमें इसका आइडिया होना चाहिए। तो यहाँ पे ए की वैल्यू बता दो क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू क्या है, 1/2 है, तो इसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2 पाई, अंडर रूट ऑफ पाई बाई ए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, दैट इज 1/2, दैट इज 1/2, वी कैन राइट हियर व्हाट, अंडर रूट ऑफ 2 पाई अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 पाई, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 1। अगेन वी आर गेटिंग द सेम थिंग, means either we can apply the Fourier transform, either we can apply the normal distribution, either we can apply the gamma function। कोई भी मेथड अप्लाई कर लो, सब में आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है, बट जनरली मैं जो अप्लाई एप्लीकेशन यूज करता हूँ, फोरियर ट्रांसफॉर्म का भी यूज करता हूँ। जैसे साइन टी का आ गया, ऐसे आ जाएगा माइनस इन्फिनिट टू इन्फिनिट सिंक ऑफ, जैसे यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ माइनस इन्फिनिट टू इन्फिनिट सिंक ऑफ 4t dt। तो ऐसे में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होने लगेगा, तो इसमें फोरियर ट्रांसफॉर्म का हम यूज करेंगे। अभी मैं इस पे एक लेक्चर पूरा, इस पे जो 1 आवर्स के अराउंड एक लेक्चर बनाऊंगा। इसके बाद जितने इसी इलेक्ट्रिकल का कंफ्यूजन सबसे ज्यादा इसी में होता है,
और गेट के लिए सबसे जो है फेवरेट उनका एक टॉपिक होता है सिंक और सैम्पलिंग, और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन स्टूडेंट को इसी में होता है। जनरली मैंने देखा 90% स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज रहते हैं, सिंक और सैम्पलिंग में, और इसका क्वेश्चन हमेशा ही आता है। तो मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। उसके बाद एक भी आपका सिंक और सैम्पलिंग का क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। मैं एक ट्रिक बताऊंगा, चाहे एनर्जी निकालना होगा, किसी का एरिया निकालना होगा, कुछ भी निकालना होगा, ठीक है, मिस इंटीग्रेट करना होगा, तो हमेशा उसकी वैल्यू एक लाइन में आएगी, ठीक है। ओके, तो हमने 3 मेथड देखा उसमें, तो उसको यूज करके हम यहाँ पे आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं, कई बार आ चुके हैं, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट योर टुडे लेक्चर। थैंक यू सो मच।